جو موضوع ہے وہ انتہائی اہم ہے. وہ موضوع ہے دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ. اس کے اندر بڑی اہم باتیں ہم کریں گے انشاءاللہ العزیز. وہ ہم بات آگے چل کے یہ کریں گے کہ دل مردہ کیسے ہوتا ہے اور کیا نشانی ہے کہ بندہ مومن کا دل مردہ ہے. کیا کوئی ٹیسٹر ہے ہمارے پاس کہ ہم لگا کے دیکھ سکیں کہ میرا دل زندہ ہے یا مردہ ہے, وہ کس حالت میں ہے, وہ انشاءاللہ ہم آگے عرض کریں گے. اللہ رب العزت نے اپنی لائق کتاب میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ کا تھوڑا نہیں زیادہ ذکر کرو. اور فرمایا اللہ کا ذکر جو کرے گا ملے گا کیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اسے دل کا سکون عطا فرماتا ہے. آج لوگ دولتوں میں سکون تلاش کرتے ہیں, اچھی گاڑیوں میں سکون تلاش کرتے ہیں, اچھا مکان بنا کے ٹائل پتھر لگا کے سکون تلاش کرتے ہیں. فرمایا یہ مادہ پرستی کا دور ہے, اللہ نے ان چیزوں میں سکون رکھا نہیں جن میں ہم تلاش کرتے ہیں. فرمایا اگر تم نے سکون لینا ہے تو پھر اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا. جو اللہ کا ذکر کرے گا اللہ پھر اسے دل کا اطمینان اور دل کا سکون عطا کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ارشاد فرمایا ان العبد لا یاتی الی مجالس الذکر. نبی اسلام فرماتے ہیں کہ لوگ اہل اللہ کی مجالس کی طرف جاتے ہیں, جو ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں وہاں پہ جاتے ہیں. کس حالت میں جاتے ہیں؟ فنکل جبال بھی ضرور کل جبال, اتنے گناہ لے کے جاتے جیسے بڑے بڑے پہاڑ ہیں. پہاڑوں جتنے لوگ گناہ لے کر ذکر کی مجلسوں میں جاتے ہیں. لیکن میرے آقا اسلام فرماتے ہیں جب ذکر کی محفل سے ہو کے آتے ہیں تو گناہ ایک دن سے نامہ اعمال میں نہیں ہوتا. اللہ رب العزت اس ذکر کی مجلس کی وجہ سے ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. یہ جو جماعت ہے آپ کو پتہ ہے اس میں راز کیا ہے؟ کیوں شریعت کہتی ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو؟ اس میں راز یہ ہے کہ سب میں کھڑے جماعت میں شامل ایک بندے کی بھی قبول ہے تو اللہ باقیوں پہ بھی رحم فرما دیتا ہے کہ جس کی کچھ نہ کچھ کمزوری ہے. ایک بندے کے دل میں بلا کا ذوق ہے, بندے کے دل میں بلا کا خضوع ہے, تو فرمایا جب اس کی نماز اعلیٰ عید میں اعلیٰ درجے میں پہنچتی ہے تو اس میں خضوع میں کمی ہے تو اللہ تعالیٰ اعلیٰ خضوع کی وجہ سے وہ کمی پوری فرما کے اس نماز کو بھی قبول فرما لیتا ہے. یوں اجتماعی طور سے ذکر کی جو محاذر رہتی ہیں فرمایا اگر ذوق نہیں ہے تو کسی کو دیکھ کے ذوق پیدا ہو جائے گا, اگر محبت نہیں ہے تو اہل محبت کو دیکھ کے محبت پیدا ہو جائے گی. اس لیے فرمایا تم اکٹھے ہو کے اللہ کا ذکر کرو. بلکہ وہ فرشتوں کی کام ہے, کچھ فرشتے ہیں سیاحین یعنی دنیا سے سیر کرتے ہیں, ان فرشتوں کا کام کیا ہے؟ وہ ایسے فرشتے ہیں وہ زمین میں ڈھونڈتے ہیں کہاں لوگ بیٹھے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے. جہاں فرشتوں کو ایک فرشتے کو بھی نظر آ جائے لوگ بیٹھے اللہ کے ذکر کے لیے, وہ فرشتہ باقی فرشتوں کو بلا لیتا ہے, آ جاؤ ہمیں اہل اللہ مل گئے, اللہ کا ذکر کرنے والے مل گئے. وہ فرشتے اپنے نورانی پروں سے انہیں ڈھانپ لیتے, نورانی پروں سے ڈھانپتے ہیں جب تک محفل جاری رہتی ہے. فرشتے بیٹھے رہتے ہیں, ضروری نہیں ہے ہر مجلس میں آتے ہیں. جہاں لوگ باہر روک ہو کے بیٹھتے ہیں, محفل سے بیٹھتے ہیں, باوضو ہو کے بیٹھتے ہیں, پھر وہ فرشتے نورانی پر ان سے بچھاتے ہیں. مجلس برخاست ہوتی ہے, فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. کبھی کسی سے بات ہے لیکن میں اشارہ کر رہا ہوں, فرشتے پوچھتے ہیں جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اللہ پوچھتا ہے فرشتوں میرے بندے کیا کرتے تھے؟ یا اللہ جنت مانگتے تھے, دیکھی یا انہوں نے؟ یا اللہ نہیں دیکھی. فرمایا دیکھ لے تو یا اللہ مطالبہ اور بڑھ جائے گا. اور کیا یا اللہ جنت سے بنا مانگتے تھے, جنت دیکھی ہے؟ یا اللہ نہیں. اللہ فرماتا ہے جنت دیکھ لیتے تو یا اللہ اپنا اور مانگتے. اللہ فرماتا پھر گواہ ہو جاؤ, جنت دیکھی نہیں طلب رکھتے ہیں, جنت دیکھی نہیں خوف رکھتے ہیں, تم گواہ ہو جاؤ میں نے بخش دیا. یا اللہ مسئلہ ہم نے بھی پوچھنا ہے, فرشتے بولتے ہیں. اللہ پوچھتا ہے وہ کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ اللہ والے بیٹھے تھے, ذکر والے بیٹھے تھے, ایک بندہ گزر رہا تھا, اس نے کہا یہ کون لوگ بیٹھے ہیں, وہ بھی آگے بیٹھ گیا. تو یا اللہ ہم نے یہ پوچھنا تھا وہ ذکر والوں سے تو نے فرق دیا ہے, یہ جو راہگیر تھا, یہ جو مسافر تھا, گزرتا بیٹھ گیا, ان میں سے نہیں تھا لیکن ذکر میں بیٹھ گیا. یا اللہ اس کے بارے میں تیرا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے هم الجلساء لا يشقى جليسهم. فرمایا کہ جو ذکر والے اتنے عظیم لوگ ہیں جو ان کی بارگاہ میں بیٹھ گئے وہ بھی بدبخت نہیں ہے, اسے بھی بخش دی جائے. اتنی عظیم مجلس ہے کہ فرمایا ان میں سے نہیں ہے, آگے بیٹھ گیا ہے. تو ہم ان کی صحبت کی برکت کی وجہ سے اللہ اس کے لیے بھی فیصلہ فرما دیتا ہے. میرے آقا اسلام فرماتے تھے کہ جنت کے کیاریوں سے چل لیا تو آقا جنت کی کیاریاں دنیا میں بھی ہیں. ہاں جنت کی کیاریاں دنیا میں بھی ہیں. آقا وہ کیا ہے؟
फरमा वो जिक्र के हल्के हैं, फरमा जहाँ जिक्र के हल्के सजदे हैं वहाँ तुम बैठा करो, ये जन्नत की क्यारियां हैं। बंदा जब अल्लाह का जिक्र करता है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मेराज पे मैं गया तो वहाँ मैंने अल्लाह की रहमत में गोता बंद एक बंदे को देखा, तो मैंने पूछा ये कौन है, ये कौन बंदा हो, ये एजाज ये कैसे मिला? कहा गया आका ये दुनिया से हर वक्त रब का जिक्र करता था, अल्लाह ने ये एजाज इस वजह से उसको अता फरमाया है कि हर वक्त अपने रब का जिक्र करता था। तो हमें अल्लाह का जिक्र करना, जिक्र वालों के बाद बैठना, अपने बातन की तबाही करना। और ये मेरे आका इस्लाम ने कहा कि इंसान के वजूद में जो लोथड़ा है, अगर वो ठीक हो जाए सारा बंदा ठीक है, वो बिगड़ जाए पूरा पता बिगड़ जाता है। अल्लाह वहियल क़ल्ब, फरमाया वो दिल है। लुकमान हकीम कहते हैं सबसे पहले मुझ में जो हिकमत की बात कहा हुई वो ये थी कि मेरे वालिद ने एक बकरी ज़िबा की, मुझे कहा इसके बेहतरीन हिस्से लेके आओ। लुकमान हकीम कहते हैं मैंने दिल लिया, जुबान ही तुम्हारे को पेश कर दी। उसने कहा ठीक है, वक्त गुजरा, उसने फिर बकरी ज़िबा की, कहा इसके बदतरीन हिस्से लेके आओ। लुकमान हकीम कहते हैं मैंने फिर जुबान लिया तो लेके आ गए। मालिक ने चौंक के पूछा पहले मैंने कहा था बेहतरीन हिस्से लेके आओ, तुम यही लेके आए, अब मैंने कहा बदतरीन हिस्से लेके आओ, तुम यही लेके आए, क्यों? तो लुकमान हकीम कहने लगे मैंने अपने मालिक को कहा ये दो चीजें जब संवरती हैं तो इंसान संवरता है, जब ये दो बिगड़ती हैं तो इंसान बिगड़ता है। दिल ये नेकी और बदी की बुनियाद है, कोई बंदा नेकी का काम न करे कभी कर दे, पूछे क्यों की है तो कहता यार दिल किया, अच्छा आदमी हो बुरी जगह पे चला ये क्यों गया, कहता बस यार दिल किया था, अच्छाई बुराई का आगाज दिल से है, जब दिल सही हो जाए तो वो बुराई की ख्वाहिश दिल में पैदा नहीं होती, इसलिए दिल मुर्दा दिल नहीं इसे जिंदा कर दोबारा। इकबाल ने कहा था दिल मुर्दा दिल नहीं है इसे जिंदा कर दोबारा, यही है कौमों के मर्दे कुहन का चारा, जो लाइलाज मर्दे हो जाए उनका जो इलाज है वो भी अल्लाह का जिक्र है, वो भी जिंदा दिली है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे दिल खाक दिया करते हैं, इसलिए दिल की सफाई। आपको पता है जिस घर में मेहमान आता हो बड़ी सफाई होती है, और अगर कोई बेटी को देखने वाले आए हो तो फिर तो कई दिनों से सफाइयाँ चलती हैं, तो जहाँ चंद लम्हों के लिए मेहमान ने आना है कितनी सफाई है, जिस दिल में रब ने रहना है। वहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, मैंने पूछा यहाँ तू रहता किधर है, फरमाया ना मैं पानी की रवानगी में रहता हूँ ना पहाड़ों की चोटियों में रहता हूँ, मैं अगर रहता हूँ तो बंदे मोमिन के दिल में रहता हूँ। वो ज़ियादत कहते मैंने पूछा या अल्लाह तो किधर रहता है, फरमाता जो दिल मेरी मोहब्बत में टूटता है मैं उधर रहता हूँ। तू बचा बचा के न रखी से तेरा आईना है वो आईना, जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह है आईना बाग में, जो बंदा जितना गमगीन रहता है वो उतना अल्लाह के करीब रहता है। पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, जो बंदा जितना गमगीन रहता है, आपको पता है जब दुनिया में ठोकर लगती है तो अल्लाह कितना याद आता है, जब दुनिया वाले तंग आते हैं तो रब कितना याद आता है, वरना जिसका दिल जितना टूटा रहता है अल्लाह के करीब होता है, जितना बंदा खुशियों का मतवाला रहता है, जितनी खुशियों के करीब रहता है उतने दिल में गफलत आना शुरू हो जाती है, उतना बंदा गफलत में जाना शुरू हो जाता है। तो बनाए ये दिल की शिकस्त की, ये जो दुखों का आना, ये जो परेशानियों का आना, ये भी अल्लाह की हिकमत है कि ये चीजें याद करवाती हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत से रब का ये करम है, इज्तिमाई अज़ाब नहीं आएगा, फिर पूरी उम्मत ही गलत हो जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अल्लाह कुरान में कहता है वाला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूना अज़ाबिल अकबर, अल्लाह कहता है हम अपने नबी की उम्मत को छोटे अज़ाब देंगे। हिकमत क्या है, कहीं रब को भूल ही ना जाए, ये भी अल्लाह का करम है कि छोटे छोटे अज़ाब हम पर किसी न किसी सूरत में आते हैं। अल्लाह कहता है भूल न जाना मुझे, अगर मैं रहमान रहीम हूँ तो मैं जब्बार कहार भी हूँ, ये भी मेरे रब की रहमत है। तो फरमाया ये बंदा मोमिन का जो दिल है, दिल बदस्ता वर की हज्जे अकबर बाज हजारा काबा यक दिल बेहतर, जिसने एक हज किया हो ना वो फख्र से बताता मैं हाजी हूँ, और जिसने हज अकबर किया वो कहता मैंने हज अकबर किया हुआ है। लेकिन मौलाना रूम कहते हैं हज अकबर वो वाला, उससे बढ़ के भी वो हज है, हुजूर वो क्या है, तो मैं किसी बंदे मोमिन को दिल को जीत लाना ये 1000 बार काबा बनाने से आता है। किसी बंदे मोमिन के दिल को जीत लेना कितना अजीम है, किसी क्यों आप फरमाते हैं कि वो काबतुल्लाह जनाब इब्राहिम ने बनाया, दिल खुद रब ने बनाया। तो हमारी इसलिए किसी के दिल की कदर करना, नमक मत ऐसा जुमला बोलो कि जिसकी वजह से उसका दिल शिकस्ता हो जाए, वो परेशान हो जाए, बंदा मोमिन की ये जान नहीं। तो फरमाया ये दिल ये मरकज है, और ये इंसान को अपने अंदर से तलाश करना चाहिए। दिल दरिया समंदरों ढूंढे कौन दिला दिया जाने हो, भाई दिलों के अंदर हर चीज है, बंदा अपने अंदर झुक के देखे तो सही, अल्लाह ने मेरे अंदर कमाल कर रखे हैं, बड़ी आला किस्म की गैरत हुई हो।
لیکن کنیکشن جب تک نہ हो, पंखा नहीं चलता. बंदे के अंदर वायरन किसी बंदे ने नहीं की, बंदे के अंदर वायरन की है रब ने. वो वायरन कल्ब, रूह, सीरी, खफियत, नफ्सी, काल्बी, ये 7 पॉइंट अल्लाह ने बंदे के अंदर रखे हैं. लेकिन जब वो कनेक्शन करने वाला कामिल उसे मिलता है तो फिर जो करीब बैठा उसे सुकून मिलता है. तो ये हर बंदे के अंदर ये चीज मौजूद है. तो लेकिन ये कनेक्शन जब होता है, मैंने कहा बंदे के अंदर हर चीज है. वो बम्बई के सुनियारा था, उसके पास बड़े कीमती हीरे थे. वो किसी लिए लाहौर आ गया, उसने मजमा आम में अच्छे वक्त होते थे, मजमा आम में दिखाए कि बड़े कीमती मेरे पास हीरे हैं, अगर कोई रात हो तो मुझे बताए. खैर जिसने लेना था वो ले लिया, बकिया उसने अपने बैग में डाले तो बम्बई वापस जाने लगा. वो बम्बई वापस जा रहा था, चोर ने कहा बड़े कीमती हीरे क्यों ना इनको काबू किया जाए. एक चोर कहने लगा यार तुम बम्बई से आए तो मैं भी बम्बई से आया, क्यों ना मैं तेरे साथ चल जाऊँ. उसने कहा यार कीमती चीज है, कहीं को डाकू ना बढ़ जाए. उसने कहा ठीक है तो मेरा मुसाफिर है. तो लेकिन उसने कहा मैंने शुक्रना ऑफिस से रहना, कहीं ये मेरे हीरो का काम तमाम न कर जाए. सारा दिन सफर करते थक जाते, रात को लेटते. जब रात को लेटते तो वो बंदा खुदा जो सुनियारा था जिसके पास बड़े कीमती हीरे थे, वो क्या करता, वो जो हीरा था ना अपने बैग से निकाल कर चोर की जेब में डाल देता. सोते वक्त वो चोर उठता उठकर कभी बैग से तोड़ता, कभी उसकी जेबों को टटोलता, उसे हीरा न मिलता. वो बड़ा परेशान होता. वो जिद करा तो वो फिर ऐलान करता मेरे पास हीरा, किसी ने लेना हो तो ले ले. चोर कहता है मैं तो ढूंढता रहा हूँ, मुझे नहीं मिला. अगले दिन फिर वो क्या करता है, वो ढूंढता है, वो तलाश करता है, वो नहीं मिलता. वो कैसे मिले, वो तो चोर की जेब में रख देता था. वो सारा तलाश करता, उसे न मिला. तीसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ, उठा सुबह तो कहने लगा हीरा कीमती है, किसी ने लेना हो. वो कह रहा ठीक बात है, 2 दिन हो चुके हैं मुझे तलाश करते नहीं मिला. चोर कहने लगा ठीक है आज रात देखते हैं. वो चोर तीसरे दिन बड़ी कोशिश उसने की, टटोला बैग को, जेब को न मिला. असल को उसकी अपनी जेब में पड़ा था. वो जब चौथे दिन की सुबह होती है तो चोर कहने लगा यार हकीकत तुझे बताता हूँ, मैं चोर था लेकिन तू मेरा भी उस्ताद निकला है, बता तो सही ये तो छुपाता कहाँ पे था. उसने कहा यार तू सारी चीजों को तलाश करता था, तूने अपना आप देखा ही नहीं है. मैं तो तेरी जेब, उलमा कहते हैं, सूफिया कहते हैं, आज हम हर जगह अल्लाह को तलाश करते हैं. नहीं करते तो अपने अंदर ही नहीं करते. भाई अपने अंदर झुक के देखो अल्लाह ने कितना बड़ा कमाल आपके अंदर रखा है. तो हमारा दिल जब मुर्दा हो जाए तो इंसान अल्लाह की रहमत से दूर होना शुरू हो जाता है. हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि 3 चीजें अगर तेरे अंदर है तो समझ तेरा दिल जिंदा है. मैं बड़ी अहम बात नहीं कर रहा हूँ, तवज्जो कीजिए. अगर 3 चीजें तेरे अंदर हैं समझ ले तेरा दिल जिंदा है. अगर 3 चीजें तेरे अंदर नहीं समझ दिल मुर्दा है. 3 चीजें कौन सी हैं? अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं नंबर 1 इन तस्माइल कुरान. 3 जगह अगर दिल लग जाता है तो समझ दिल जिंदा है. हुजूर कौन से? इन तस्माइल कुरान. अगर कुरान सुने तो दिल करे सुनता जा, समझ दिल जिंदा है. कुरान जब सुने तो मजीद सुनने को दिल करे, कुरान सुनने में दिल लग जाए, वापस जाना. मेरे आका इस्लाम फरमाते मैं दिल का जुट के वक्त निकला अपने सहाबा के घरों में. देखो सहाबा सोते हैं या क्या करते हैं. नबी इस्लाम सहाबा को फरमाने लगे सहाबा आज नमाज़े फजर से पहले मैं तुम्हारे घरों में चक्कर काटने गया. आका फिर नबी इस्लाम फरमाने लगे तुम्हारे घरों के बाहर जब मैंने कान लगाया मुझे शहर की मक्खियों की फिनफिनाहट की तरह तुम्हारे कुरान पढ़ने की आवाज आती थी. मैं जहाँ भी गया मुझे कुरान पढ़ने की आवाज आती थी. मेरे आका इस्लाम से आबाए कराम के कमाल को बयान फरमा रहे थे. अगर कुरान सुनने को दिल करे तो फरमाया दिल कुरान सुनने से लग जाए, समझ लो दिल जिंदा है. नंबर 2 वफी मजलिस जिक्र. अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं जिक्र की मजलिस में दिल लग जाए तो समझ लो दिल जिंदा है. और नंबर 3 फरमाया वफी वक्तिल खलवती. फरमाया जब तन्हाई में बंदा बैठा हो और रब याद हो तो समझ लो रब जिंदा है. और ये 3 निशानियां और 3 अलामतें उलमा ने बयान की हैं. ये कहकर आपको देने लगा हूँ जी. आप अपने दिल से निकालकर अपने आप को निकालकर देख सकते हैं मेरा दिल जिंदा है या मुर्दा हो चुका है. अगर मुर्दा है तो किस हद तक मैं मुर्दा हो चुका हूँ. अब ये 3 बातें मैं अर्ज करने लगा हूँ. पहली बात थी दिल मुर्दा होने की पहली अलामत क्या है. 3 अलामतें अर्ज करने लगा हूँ. लगाइएगा इधर देखिए 3 अलामतें अर्ज करने लगा हूँ दिल मुर्दा होने की. हम में से हर बंदा देखे मेरे समेत कि कहीं हम किसी कैटेगरी में तो नहीं आ रहे. अगर आ रहे हैं तो दिल मुर्दा होने की तरफ जा रहा है या हो चुका होगा या होने की तरफ जा रहा होगा. अपने आप को संभालिएगा, संभाला दीजिएगा, देखिएगा हम किस जगह पे खड़े हैं.
तीन अलामत उसका रब इनसे मुर्दा होने की। पहली अलामत क्या है? वह आज़मुल हुस्न अलामा फातक मिन ताआत, अगर कोई इबादत रह जाए दिल गमगीन न हो, समझ लो दिल मुर्दा हो चुका है। आपकी नमाज़ें फजर रह गई, सोए रहे, लेट आंख खुली और लेट आंख खुली और आपको कोई गम नहीं है, आपको कोई फिक्र नहीं है क्यों मेरी नमाज रह गई, दिल मुर्दा है, रोजे का वक्त गुजर चुका था, आप लेट उठे, आपने कहा मैं अठपहरा रोजा रखता हूँ, मैंने रोजा नहीं छोड़ना, समझ लो दिल जिंदा है। और अगर आपके अंदर कोई बात नहीं, अगर नहीं रखा तो ना सही, तो समझ लो दिल मुर्दा हो चुका है। इबादत के रह जाने पर अगर तुम्हें फिक्र नहीं लगती, मुझे जुमला बड़ा पसंद आया, 2-4 दिन कबल एक बंदा मुझसे पूछता है नमाज़े असर के बाद कि मैंने असर की सुनते नहीं पढ़ी तो क्या मैं भी पढ़ सकता हूँ? मैंने कहा नहीं, असर की सुनते का वक्त जमात से पहले, बाद में नहीं पढ़ सकते। उसने सुना तो कुछ परेशान हुआ तो चला गया। मैं उधर पहुंचा तो बाहर का चक्कर काट के फिर आ गया, आंखों में पानी था। मैंने कहा क्या हुआ? मैं बड़ा परेशान हुआ हूँ। मैंने कहा क्या? कहने लगा मेरी कभी असर की सुनते रही नहीं है, आज रह गया, मैं बड़ा परेशान, मुझे हर कोई बताए। मैंने कहा ये बंदा मोमिन की शान, ये है दिल के जिंदा होने की अलामत कि बंदे से कोई इबादत रह जाए, फिक्र लग जाए, बंदा परेशान हो रही है, यार क्यों मुझसे इबादत रह गई है, क्या वजह? फरमाया कोई बात नहीं, बंदे से कोई इबादत रह जाती है, कभी बंदा जो है गलती कर जाता है, कभी कभी नमाज में सुस्ती कर जाएगा, लेकिन फरमाई जो फिक्र है दुआ करो कि ये फिक्र बंदे पे रहे, जो फिक्रमंद रहता है अपनी इबादत के बारे में, समझ ले उसका दिल जिंदा है, दिल मुर्दा नहीं है। नंबर 1 इबादत पे फरमाया जो इबादत बंदा करते उनके रह जाने पर अगर कम है दिल जिंदा है, अगर कम नहीं है दिल मुर्दा है। नंबर 2 तरकुन नज़मी अलामा फ़अलत मिनज़ ज़ल्लात, अगर आपसे गलती हो गई, अगर उस गलती पर नदामत है दिल जिंदा है, गलती पे नदामत नहीं दिल मुर्दा है। आपने किसी का दिल दुखा दिया, आप उससे नदामत नहीं होती, माफी नहीं मांगते, समझ लें आपका दिल मुर्दा है। और अक्सर मालदारों का दिल मुर्दा होता है, उन्हें नहीं खबर हो तो माल के खुमार में होते हैं, करोड़पति होते हैं, माल उनके पास होता है, हलाल और हराम की तमीज को उनको नहीं होती, दिल मुर्दा हो चुका होता है, उन्हें क्या खबर हो हम क्या जुमले निकाल रहे हैं, वो सामने वाले पे वो जुमले क्या बन के खस्तर बन के लगेंगे या क्या बन के लगेंगे, वो तो अपनी दौलत के खुमार में है। तो कहा गया कि जो गलती बंदा करे, गलती पे नदामत अगर ना हो, समझ लो दिल मुर्दा है। बंदे मोमिन की शान ये, गलती हो जाए फौरन तड़प जाता है, फौरन पिघल जाता है, फौरी तौर पे आगे कहता नहीं यार मुझसे गलती हो गई है, मैं माजरत करता हूँ। तो फरमाया अगर नदामत नहीं है, शर्मिंदगी नहीं है, समझ ले दिल मुर्दा है। अगर शर्मिंदगी है, नदामत है, समझ ले दिल जिंदा है। नंबर 3 फरमाया गया वो सब बातों कल गाफिरीन अल अमवात, तो कहा गया जो गाफिर बनता है अगर तो उसकी सोहबत में बैठेगा, समझ लेगा दिल मुर्दा है। अगर तो देखे ना जो नशे वाला है, नशे वाले की सोहबत में बैठेगा, जो बुरा है वो बुरे की सोहबत में बैठेगा। अगर दिल मुर्दा है तो मुर्दा लोगों की सोहबत में वो जाके बैठेगा। जिसका अपना दिल जिंदा है वो किसी जिंदा की मजलिस को तलाश करेगा, वो किसी नेक की मजलिस को तलाश करके बैठेगा। अगर मुर्दों की मजलिस में जाके बैठता है, जो नमाज नहीं पढ़ते उनकी मजलिस में जाके बैठता है, जो जिक्र नहीं करते उनकी मजलिस में जाके बैठता है, जो हाथ में ताश पकड़ के बैठते हैं अगर उनकी मजलिस में जाके बैठता है, समझ लो वो काफिर है। मैं अगर उधर जाके बैठा हूँ तो मेरा दिल भी मुर्दा है, मेरा दिल भी काफिर है। अगर मेरे दिल में गफलत ना होती, मैं काफिरों के पास जाके कभी ना बैठता, मैं जाकिरीन के पास बैठता, मैं नेक लोगों के पास बैठता। ये 3 अलामात मैंने अर्ज कर दी है, मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूँ। फरमाया अगर इबादत के रह जाने पर आपको गम न हो, दिल मुर्दा है। अगर आपको गलती होने पर शर्मिंदगी न हो, दिल मुर्दा है। नंबर 3 फरमाया गया अगर आप गाफिलों की सोहबत में बैठते हैं, दिल मुर्दा है। अगर आपका दिल मुर्दा नहीं तो शुक्र अदा कीजिएगा। अगर कोई निशानी थोड़ी पाई जाती है, मेरे समेत इस्लाह की हर बंदा कोशिश करे, जब बंदा इस्लाह की कोशिश करता है दिल जिंदा होता है, अल्लाह की रहमतों का ये मरकज है, फिर अल्लाह की रहमतें बरसती हैं और बंदे को अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है। मेरे आका इस्लाम फरमाते दिल की हालत ये है, ये सफेद मफहूम में हकीकत कर रहा हूँ, ये सफेद कपड़े की तरह है। फरमाया जब बंदा गुनाह करता है तो एक नुकता उसमें लगता है, सफेद कपड़ा हो
تو ایک نقطہ بھی لگے دور سے نظر آتا ہے. تو کہا کہ دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا نقطہ, تیسرا کرے تیسرا, اگر توبہ کر لے کپڑا صاف ہو جاتا ہے. میاں صاحب نے اسی کو کہا تھا چٹی چادر عملہ والی اور داغ نہ لائیو جڑیاں حشر دیہڑے پھر نہ کی ہے رفا کی بڑھیا. فرمایا یہ سفید چادر کی طرح ہے, ایک گناہ کرو گے نقطہ, پھر کرو گے نقطہ, توبہ کرو یہ صاف ہو جاتا ہے. توبہ نہ کرو گناہ کرتا جائے یہ سارا سیاہ ہو جاتا ہے. سارا جب سیاہ ہو جائے پھر کوئی فکر نہیں ہوتی. ادھر جمعہ ہو رہا ہوتا ہے, ادھر وہ اپنے کاموں کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. ادھر جمعہ ہو رہا ہوتا ہے, ادھر نماز کا وقت ہے, وہ کہتے کوئی بات نہیں بڑا وقت پڑا ہے پڑھ لے کے نمازیں. وہ مسلمان پڑھ رہے ہیں نمازیں, میں اکیلا نہیں بھی پڑھوں گا کیا کروڑ ہاتھ لینے شیطان سے اس کے دل میں ڈالے گا. اس لیے اگر غلطی ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں جھکنا اور اس کا غافلین سے بچ کر نیک لوگوں کے پاس جا کے بیٹھنا, یہ ان لوگوں کی نشانی ہے جن کے دل اللہ کی یاد میں تازہ رہتے ہیں اور جن کے دل زندہ ہیں. اللہ ہم سب کو زندہ دلی والی زندگی عطا فرمائے اور اللہ ہمیں مردہ دلی سے محفوظ فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.